A very good morning to all of you. So let's continue with your classes for English. I hope you all have fared well in your exams. Now we'll be starting with the first chapter of your second book, that is the footprints without feet. Okay, and the first chapter in this book is a triumph of surgery. Now when you go through the introduction of this chapter, it is given Tricky, a small dog, is pampered and overfed by his rich mistress. He falls seriously ill, and his mistress consults a veterinary surgeon. Does he perform an operation? Does the dog recover? Now, first of all, let's study about the title of the chapter. What is the title? A triumph of surgery. Okay. Now, when you go through this chapter, what happens is that जनरली व्हेन वी थिंक ऑफ सर्जरी तो व्हाट वी थिंक अबाउट सर्जरी से हम क्या समझते हैं जनरली एन ऑपरेशन विच इज परफॉर्म्ड विच इन्वॉल्व्स cutting some part of the body and then stitching it again, that is generally which we refer to as surgery. But here surgery has a different meaning, and what is the meaning of the word surgery is the hospital for sick dogs. It means the hospital for sick dogs, and it also refer in allopathy, if we consider it is called the medical aid which is given by putting the incision of some part, कहीं पे काट करके और उसको वापस स्टिच करके जो परफॉर्म किया जाता है, that is called surgery in the terms of allopathy. Okay, लेकिन इसमें क्या है, the hospital meant for sick dogs. Okay, now what happens is that Tricky is the dear dog of Mrs. Pumphrey. Tricky, the name was given initially only in the chapter, and he is the dog of Mrs. Pumphrey. And what happens is that he becomes sad. And as Mrs. Pumphrey is very fond of Tricky, बहुत प्यार करती थी उससे, तो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती हैं. तो वो ऑथर को बुलाती हैं, और ऑथर कौन था? एक वेटरनरी सर्जन. ऑथर जो है कि एक वेटरनरी सर्जन था. वेटरनरी सर्जन मीन्स जो एनिमल्स की सर्जरी करता था, एनिमल्स को अटेंड करता था, सिक एनिमल्स को. तो वो उसको बुलाती हैं, वो पूछता है ट्रिकी के बारे में, तो वो कहती हैं कि मैं इसको खिलाती हूँ लेकिन ये खाता नहीं है प्रॉपरली. और ट्रिकी को देख करके एक बार में वो समझ जाता है कि ओवर फीडिंग की वजह से ये बीमार हो रहा है. तो वो पहली बार में तो मिसेस पाम्फ्री को बोल करके चला जाता है कि अगर आप इसको प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं दोगे, ओवर फीड करोगे, तो ये और ज़्यादा बीमार हो जाएगा. लेकिन मिसेस पाम्फ्रे उसको सीरियसली नहीं लेती हैं, एंड शी कंटिन्यूज विद द सेम रूटीन, एंड अगेन शी हैज़ टू कॉल द डॉक्टर. नाउ हियर व्हेन द डॉक्टर कम्स, ही टेक्स ट्रिकी विद हिम टू द सर्जरी. और वहाँ पर वो, क्योंकि वो एक हॉस्पिटल होता है, तो वहाँ पे वो ट्रिकी की डाइट को रेगुलेट करता है, और दूसरी बात उसको एक्सरसाइज भी करवाता है. और बहुत सारे डॉग्स होते हैं वहाँ पे, उनके साथ ट्रिकी जो है बहुत सारी एक्सरसाइज करता है, भागता है, दौड़ता है, और कुछ ही दिनों में वो सही हो जाता है. एंड आफ्टर गेटिंग फाइन, what happens is that he goes back to his mistress, goes back to Mrs. Pumphrey. लेकिन इस दौरान क्या होता है कि जब ट्रिकी सर्जरी में था, तो ट्रिकी की वजह से मिसेस पाम्फ्रे वहाँ पे बहुत कुछ खाने पीने के लिए और दूसरी चीज़ें भेजा करती थी कि उनको लगता था कि ट्रिकी के लिए ज़रूरी होंगी. तो वहाँ पे जो सर्जरी में और लोग थे, सबको लगता था कि ट्रिकी यहीं रह रहा है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हमें बहुत कुछ मिल रहा है, बिकॉज एवरीथिंग वॉज नॉट ईटन बाय ट्रिकी, और एवरीथिंग वॉज नॉट यूज बाय ट्रिकी. Mostly the workers over there, they were using the things sent by Mrs. Pumphrey. Okay, but finally Tricky goes back to Mrs. Pumphrey, और डॉक्टर होता है जो राइटर है, वो वेटरनरी सर्जन, वो कहता है कि अभी भी अगर आप इसका वही सेम रूटीन वापस से कर दोगे, तो मैंने जो इसको ट्रीटमेंट दिया है उसका कोई फ़ायदा नहीं निकलेगा. So with this you will find the chapter ends. Okay, now in the beginning of the chapter only, I was really worried about Tricky this time. I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress, and I was shocked at his appearance. He had become hugely fat, with a bloated sausage like a leg, with a leg at each corner. His eyes, bloodshot and rheumy, stared straight ahead, and his tongue lolled from his jaws.
तो ये डिस्क्रिप्शन राइटर दे रहा है जब उसने पहली बार ट्रिकी को देखा था अपनी मिस्ट्रेस के साथ, तभी उसको लग गया था कि ये बहुत ओवरफेड है। उसके बिल्कुल एक प्लम्पी डॉग की तरह वो भी था, बहुत मोटा, और ऐसे द स्किन वॉज सैगिंग, और आंखें बिल्कुल उसकी लाल, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम द टंग वॉज प्रोट्रूडिंग आउट ऑफ द jaws. Mrs. Pumphrey hastened to explain he was so listless, Mr. Harriet. He seemed to have no energy. I thought he must be suffering from malnutrition. Now, what he means by listless, that he has become so, what he has become, he has become so lack of, it seems that he has become lack of energy. इसमें कोई ताकत नहीं रही है, और शायद इसको प्रॉपरली खाना नहीं मिल पा रहा है, लेकिन फिर भी मैं इसको एक्स्ट्रा मील्स भी दे रही हूँ, द माल्ट, द कोल्ड लिवर ऑयल, बाउल ऑफ हॉर्लिक्स, एवरीथिंग आई एम गिविंग, बट even then he is not doing well. And did you cut down on the sweet things as I told you? तो डॉक्टर ने उनको पहले ही बोला था कि आप इसको मीठा ज़्यादा मत दो। तो लेकिन मिसेस पाम्फ्री जो है वो इसको इतना पसंद करती थी, उनको लगता था कि ट्रिकी को केक्स और आइसक्रीम्स बहुत पसंद है, केक्स और चॉकलेट्स बहुत पसंद है, तो मैं इसको कैसे नहीं दूँ। सो शी यूज्ड टू गिव इट टू हिम. I looked down again at the little dog that was the trouble. Tricky's only fault was greed. So what was the only fault of the poor dog? That he had become greedy. Because of being overfed, what happened? So good things were given to him, so cakes and chocolates. So he also became greedy and he used to eat a lot. वो कभी भी खाने के लिए मना नहीं करता था, चाहे दिन हो चाहे रात हो। और मिसेस पम्फ्री ने जो डॉक्टर ने मेंशन किया था वो कुछ भी फॉलो नहीं किया था। Are you giving him plenty of exercise? So that's what the doctor asked. Then do you give him the exercise? So well, he has his little walks with me, as you can see, but Hodgkin, the gardener, has been laid down with lumbago, so there has been no ring throwing lately. तो वो कहती है कि नहीं, कि थोड़ा बहुत ही मेरे साथ घूमता है और गार्डनर के साथ रिंग पकड़ने का गेम खेलता था, लेकिन वो गार्डनर जो है आजकल उसके लम्बैगो मीन्स रूमेटिक पेन हो रहा है, उसके जोड़ों में दर्द हो रहा है, तो इस वजह से आजकल वो भी उसको खिला नहीं पाता। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द फर्स्ट पेज ऑफ द चैप्टर. नाउ रेस्ट वी शैल कंटिन्यू टुमारो.